ایران امریکہ ڈیل کے بعد پاکستانی عوام کو بڑا ریلیف، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی، پیٹرول 74 اور ڈیزل 67 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے فی لیٹر ہوگی، فی لیٹر ڈیزل سستا ہو کر 311 روپے پر آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان کی ثالثی کی بدولت امن ممکن ہوا، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، مہنگائی میں مزید کمی کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ساری دنیا میں پاکستان کا نام عزت و وقار سے گونج رہا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا پاکستان چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ ایران امریکہ ثالثی کی کامیابی میں سب سے زیادہ کلیدی کردار فیلڈ مارشل کا ہے۔ ایران اور پاکستان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر کو ایک بار پھر دورہ پاکستان کی دعوت، شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں پاکستانی وفد کی شرکت کی تصدیق، ایران امریکہ کامیاب ثالثی کرانے پر قومی اسمبلی میں تہنیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل اسحاق ڈار اور دیگر قیادت کو خراج تحسین۔ چین، سعودی عرب، ایران، امریکہ، قطر اور ترکی اور دیگر ممالک سے اظہار تشکر۔ حکومت اور اپوزیشن میں برف پگھلنے لگی، وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی نشست پر گئے، محمود اچکزئی، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر کے ساتھ مختصر مشاورت۔ اپوزیشن نے سابق فاٹا کے بجٹ کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا۔ وزیر اعظم نے وزیر خزانہ کو بلا کر ہدایات دی۔ محمد اورنگزیب اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات، فاٹا سمیت بجٹ سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات۔ اور امیر مقام صاحب نے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ سیاست میں ڈائلاگ جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہوتا ہے اور جمہوریت کی بنیاد ہی اسی پہ ہے۔ تو جس طرح سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے دوبارہ جو ہے وہ ہاؤس میں انہیں یہ آفر کی ہے کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ہمیں میثاق استحکام پاکستان کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ میثاق استحکام اکانومی کرنا چاہیے، ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو اس آفر کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ حکومت کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی وفد نے ڈائلاگ کے آفر پر مثبت جواب دے دیا۔ جمہوری انداز یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں۔ وزیر اعظم نے میثاق استحکام میں پاکستان کرنے کا کہا اور یہ آفر اب بھی ہے۔ اپوزیشن نے کہا ہے آپسی مشاورت کے بعد ہم حکومت کو بتائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو خدشات ہیں تو ہم ان کا گلہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے بات کی اپنے فاٹا اور پاٹا کے ٹیکس کے حوالے سے کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ بات کی ہے کہ اس وقت ویسے بھی افغانستان کے ساتھ کاروبار بھی متاثر ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو رہی ہے، اور اگر اس قسم کے ٹیکس آپ لگائیں گے تو یہ جو ہے نا وہاں رہا سہا جو اکانومی چل رہی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ہم نے فاٹا کے حوالے سے بات کی ہے، وہاں ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ اسد کیسر کی حکومتی وفد سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا تمباکو پر ٹیکس کے حوالے سے بھی حکومتی وفد سے بات ہوئی، سیاسی معاملات پر بات نہیں ہوئی۔ ہماری بھی خواہش ہے میثاق جمہوریت ہو۔ حکومتی وفد نے ہمارے نکات کو تسلیم کرنے کی حامی بھری۔ صحت کارڈ پروگرام جسے عبوری حکومت نے معطل کر دیا تھا، ہماری حکومت نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ جاری مالی سال میں اس کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے۔ رواں مالی سال کے دوران بارشوں اور سیلاب میں فوت شدہ افراد کے لواحقین اور زخمیوں کی مالی اعانت کے لیے 4.29 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ہماری حکومت ہر بچے کو مساوی، معیاری اور جدید تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔
नए प्राइमरी स्कूल, प्री फैब्रिकेटेड और मॉडल स्कूलों के क़याम से तालीमी रसाई में इजाफा किया गया, जबकि इजाफी क्लास रूम्स, बाउंड्री वॉल, साइंस लेबॉर्ट्रीज, वाशरूम्स और इम्तहानी हॉल्स की तामीर पर भी काम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 48 अरब से जायद खसारे का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बजट तकरीर की, कहा पानी से मुलाकात तक किसी ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। बजट का तखमीना 2170 अरब से जायद है। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। निज़ाम असला में स्कूल्स के अपग्रेडेशन के लिए 18 करोड़ रुपए मुख्तस। खैबर मोहम्मद और बाजोड़ के लिए 1.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब रुपए से जायद मुख्तस। वन बिजली खालिस मुनाफा कीमत में 105 अरब से जायद मिलने का इम्कान। सेहत कार्ड के लिए मुख्तस फंड्स बढ़ाने की तजवीज़। नौजवानों के रोजगार के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। इससे पहले PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में नाराज अरकान शरीक न हुए। बजट इजलास से पहले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान की बैठक। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान कहते हैं कि अवामी मफादात के खिलाफ किसी इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे। अपोजिशन सूबे के हुकूक और अवामी मसाइल पर भरपूर आवाज़ उठाएगी, अपना आइनी और जमहूरी किरदार अदा करते रहेंगे। इसराइली जारहियत ईरान अमरीका मुज़ाकरात में रुकावट बन गई। अमरीका और ईरान के दरमियान आज स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख। ईरानी वफ़द ने लेबनान पर हमलों के बाइस दौरे स्विट्ज़रलैंड कैंसिल कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए के मुताबिक चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची रवाना होने के लिए तैयार थे। लेबनान हमलों के बाइस आखिरी लम्हात में दौरा मनसूख कर दिया गया। मुज़ाकरात की नई तारीख और मकाम का तयन अभी तक नहीं हुआ। स्विस वज़ारत ख़ारिजा की भी आज बैगिंगस्टॉक में तयशुदा मुज़ाकरात न होने की तस्दीक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी स्विट्ज़रलैंड का दौरा मौखर कर दिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू होने के मुंतज़िर हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात मुहर्रमुल हराम की वजह से ताख़ीर का शिकार हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू और कहा मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। जुलाई के पहले हफ्ते में शहीद आयतुल्लाह ख़amenei की तदफीन है। कल सुबह जब ईरानी सदर ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए तो फिर स्विट्ज़रलैंड जाने का मकसद नहीं था। 60 रोज़ के अंदर अंदर दूसरे मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल करने हैं। वहाँ पर मौजूद अपने ऑफिशल्स को वापस बुला लिया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात तेहरान की सुर्ख लकीरों के पाबंद रहेंगे। दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा ईरान माजी की तरह अपनी शराइत और कौमी मफादात पर साबित कदम रहेगा। दुश्मन हद से बढ़ने की कोशिश करेगा तो पहले की तरह साबित करेंगे कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। सदर ट्रंप की न्यूज़ वेबसाइट XU से गुफ्तगू। कहा नेतन्याहू के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं मगर हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। मैं जैसा कहूँगा इसराइल वैसा ही करेगा। इसराइल ईरान अमरीका अमन डील सबूतास करने के दर पर। ईरान अमरीका अमन मुआहिदे के बावजूद जनूबी लिबनान में इसराइल के ताज़ा हमले, 16 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइल ने गुज़िश्ता शब नब्तिया में फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी की। इसराइली फोर्सेस ने रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद लापता। हिज़्बुल्लाह के 80 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब जनूबी लिबनान में झड़प के दौरान अफसर समेत 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत पर इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर की लिबनान को जला देने की धमकी। कहा पूरी दुनिया पर वाज़े करना होगा कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों की सलामती किसी सौदेबाजी के लिए नहीं। नेतन्याहू से कहा कि हर इसराइली माँ के आंसू के बदले 1000 लिबनानी माओं को रोना चाहिए। खित्ते में सख्त तरीन ताकत का मुजाहिरा करना होगा। दहशत गर्दी को कुचल देना होगा।
तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके आप सलामती के मसाइल से नहीं निपट सकते। इस वक्त सदर ट्रंप पूरी दुनिया में इसराइल से हमदर्दी रखने वाले वाहिद सरबराह रियासत है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। ईरान डील पर तनकीद करने वालों को खरी खरी सुनाते हुए कहा, इसराइल ज्यादातर हथियार अमरीका से ही लेता है। गुज़श्ता 3 माह में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों ही बने हैं। इसराइल को हासिल हथियारों की कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा होती है। अमरीकी सदर को मसला समझने वाले ख्वाब गफलत से बेदार हों और हक़ाइक़ जानें। फ्रांस का इसराइल से लेबनान में बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीका से इसराइल पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने के लिए दबाव डालने पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, फ्रांस की मंजूरी के बगैर UN सलामती काउंसिल की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म नहीं की जा सकती। ईरान के जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशा दूर होने तक मशरिक़ वस्ता में पायदार इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरान के तर्ज अमल और पॉलिसीज़ में तब्दीली ज़रूरी है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि अमेरिकी बहरी जहाज़ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है अपना हुर्म से बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहिदे के तहत किए जाएंगे। पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाज़ों को अपना हुर्म से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी।